Hi guys, welcome back to Life Science Exam Notification channel. This video is the part 4 of Cell Biology course. So in this video, I will continue with the plasma membrane components which we were dealing in the previous lecture also. So let me start with the cholesterol. So we have discussed the various type of lipids in the previous lecture. In this lecture, I will deal with cholesterol and the membrane structure made up of cholesterol, which is the lipid raft. So let us first see what is cholesterol. So our first point is cholesterol is the major sterol in animal cell plasma membrane. So with this point, what we can see that cholesterol is the major type of sterol that is present only in the animal cell. Cholesterol is absent in plant cell, whereas it is also absent in bacterial membrane, with an exception of mycoplasm. So mycoplasm is the only bacteria that contains the cholesterol. So next point is it is randomly distributed across the plasma membrane. So it is not uniformly distributed, it is randomly distributed across the plasma membrane. Cholesterol also helps to maintain the fluidity of plasma membrane in different environmental temperature conditions. Okay, so in the next slide we will see how cholesterol helps in the fluidity of plasma membrane. So cholesterol maintain membrane structure. So what does cholesterol do? At high temperature, cholesterol prevent the phospholipid in plasma membrane from moving far away from each other so that no unwanted substance enter the cell. So what we can understand from this point is that when the temperature is high, when the surrounding temperature is high, cholesterol prevent the phospholipid that are present in the plasma membrane from moving far from each other and maintains the structure of the plasma membrane. If phospholipid move far away from each other, the plasma membrane structure will disrupt. So cholesterol prevent that. How does it do so? It do so by raising the melting point of membrane lipids. So cholesterol जो है हाई टेम्परेचर पे फॉस्फोलिपिड को एक दूसरे से दूर जाने से रोकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो. क्या करता है वो? मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स जो है, उनका मेल्टिंग टेम्परेचर को या मेल्टिंग पॉइंट को रेज कर देता है. नेक्स्ट हमने बात कर ली अभी हाई टेम्परेचर के बारे में. अगर नेक्स्ट हम बात करें लो टेम्परेचर के बारे में, सो लो टेम्परेचर पे क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रिवेंट करता है कॉम्पैक्शन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स. सो लिपिड मॉलिक्यूल्स लो टेम्परेचर पे एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं. सो कोलेस्ट्रॉल जो होता है इन लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है और क्या करता है? उनको एकदम रिजिड बाइंडिंग होने से रोक देता है और उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है. ओके, सो वो बहुत पास नहीं आ पाते हैं और जो है जो हमारा फ्लूइडिटी है मेम्ब्रेन की वो मेंटेन रहती है. एट लो टेम्परेचर द फॉस्फोलिपिड कैन कम क्लोज टू ईच अदर that they can restrict their movement and block the entry of a small molecule like gases that normally enter the cell. So low temperature पे फॉस्फोलिपिड बहुत पास आ सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? उनके पास आने को रोक देता है ताकि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि गैसेस या फिर और कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स अगर सेल के अंदर एंटर होना है उसकी एंट्री ब्लॉक ना हो, सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, सेल का फंक्शन मेंटेन रहे लो टेम्परेचर पे भी. ये कैसे करता है? इट डू सो बाय इंटरकैलेटिंग बिटवीन द फॉस्फोलिपिड एंड प्रिवेंट द कॉम्पैक्शन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉस्फोलिपिड के बीच में इंटरकैलेट मतलब दो फॉस्फोलिपिड है, उनके बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होगा और इनके फॉस्फोलिपिड के कॉम्पैक्शन को प्रिवेंट करेगा और उनके क्रिस्टलाइजेशन को भी प्रिवेंट करेगा.
नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल फंक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये हमने देखा कि लो टेम्परेचर पे क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे क्या करता है। लो टेम्परेचर पे फ्लूइड के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, फॉस्फोलिपिड के बीच में इंटरकलेक्ट कर देता है, और मेम्ब्रेन विदाउट कोलेस्ट्रॉल बिकम रिजिड एंड मे ब्रेक। और जो मेम्ब्रेन होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल जिसमें प्रेजेंट ना हो, वो इतना पास आ जाएंगे फॉस्फोलिपिड कि वो रिजिड हो जाएगी और वो टूट सकती है। देन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जो है हमने जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, वही डिफरेंस मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में रखा है। सो हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड एक दूसरे से बहुत दूर नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉस्फोलिपिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेम्ब्रेन का मेल्टिंग पॉइंट, फॉस्फोलिपिड का नहीं, मेम्ब्रेन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रेज हो जाएगा, तो जल्दी से वो मेल्ट नहीं हो पाएगी। मेम्ब्रेन जिनके पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा उनकी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा और वो अपने शेप में नहीं रहेंगे। सो इस फिगर में मैंने कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिखाया आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 फ्यूज रिंग्स होती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को बनाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोलेस्ट्रॉल। सो अभी तक हमने पढ़ा कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन कैसे करता है, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन कैसे करता है, हाई टेम्परेचर पे कैसे वर्क करता है और लो टेम्परेचर पे कैसे वर्क करता है। हम अब मेम्ब्रेन में जो स्ट्रक्चर होता है कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ उसके बारे में बात करते हैं। सो दैट स्ट्रक्चर इज लिपिड राफ्ट। सो लिपिड राफ्ट आर लोकलाइज्ड रीजन ऑफ मेम्ब्रेन दैट आर इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग। लिपिड राफ्ट लोकलाइज रीजन होते हैं, मतलब ये पूरी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं होते, कुछ ही रीजन्स होते हैं मेम्ब्रेन के जहाँ पे लिपिड राफ्ट पर, जिनको हम लिपिड राफ्ट बोलते हैं। ये क्या होता है, ये रीजन जो होते हैं हमारा सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं और ये सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। पहले हम क्या सोचते थे कि लिपिड कंपोनेंट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो यूनिफॉर्म है और हर जगह होमोजेनस है, मतलब कोलेस्ट्रॉल भी सारी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, फॉस्फोलिपिड एक जैसे होंगे, मतलब प्रोपोर्शन उनकी फिक्स्ड होगी। लेकिन अभी रिसेंटली द डिस्कवरी ऑफ लोकलाइज्ड रीजन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग वाज मेड। और इस डिस्कवरी ने क्या बोला कि जो रीजन है लिपिड राफ्ट के उन्हें माइक्रोडोमेन और लिपिड राफ्ट बोला, और ये कहा कि ये जो है लिपिड राफ्ट जो है ये हेट्रोजेनस एरिया रिप्रेजेंट करता है मेम्ब्रेन का। सो विद दिस डिस्कवरी व्हाट वी हैव अंडरस्टूड दैट द membrane is not homogeneous, it is heterogeneous, and lipid rafts are dynamic in structure। और ये डायनेमिसिटी की वजह से क्या होता है, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो इन एंड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन मूव करते रहते हैं। सो लेट्स रीड द पॉइंट्स नाउ। लिपिड राफ्ट आर लोकलाइज्ड रीजन ऑफ मेम्ब्रेन दैट आर इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग। Earlier, the lipid component of plasma membrane was regarded as uniformly fluid, जैसे कि मैंने आपको बताया, and relatively homogeneous within a given monolayer। ठीक है, एक सिंगल मोनोलेयर के बारे में बात की है। हमारा लिपिड स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बाइलेयर होता है, लेकिन हमने मोनोलेयर की बात करी कि मोनोलेयर को पहले रिलेटिवली होमोजेनस समझा जाता था, बट रिसेंटली हाँ यहाँ पे एक पॉइंट रहता है कि रिलेटिवली क्यों बोला, रिलेटिवली इसलिए बोला क्योंकि एकदम से फिक्स नहीं थी, क्या था कि लगभग होमोजेनस था, मतलब लगभग एक जैसा था। बट रिसेंटली द डिस्कवरी ऑफ लोकलाइज्ड रीजन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग वाज मेड। ठीक है, ये सिग्नलिंग स्ट्रक्चर जो है मेम्ब्रेन के उनको रिकॉग्नाइज किया गया और इन स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, लिपिड माइक्रोडोमेन्स या फिर लिपिड राफ्ट्स। These lipid rafts represent area of heterogeneity within a membrane monolayer, मैंने आपको बताया। Lipid rafts are dynamic in structure that changes in composition। ठीक है, डायनेमिक होते हैं और कंपोजिशन चेंज होती रहती है as the individual lipid move in and out of the membrane। So okay, यहाँ पे मेम्ब्रेन ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये स्लाइड इज, हाँ यहाँ पे मैंने दिखाया है नेक्स्ट स्लाइड में कि हमारा जो है लिपिड राफ्ट का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, ये रीजन हमारा कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के बिना है। अगर हम यहाँ पे देखें, देखो ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं,
सो लिपिड राफ्ट हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल है, तो ये इंटरकैलेट हुआ हुआ है बिटवीन द फॉस्फोलिपिड। इसी की वजह से लो टेम्परेचर पे फॉस्फोलिपिड एक साथ नहीं आ पाते हैं और हाई टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन की मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करा देता है कोलेस्ट्रॉल। So lipid rafts are heterogeneous structure and membrane is heterogeneous, not homogeneous. Next is lipid raft in the outer membrane monolayer of animal cell are characterized by elevated levels of cholesterol and sphingolipids. जो हमें एनिमल सेल के मोनोलेयर में, आउटर मेम्ब्रेन की मोनोलेयर में जो हमें ने स्टडी करी, उसमें हमें क्या मिला कि वहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल का स्फिंगोलिपिड का हाई लेवल था एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन। फिर द स्फिंगोलिपिड्स हैव लॉन्गर एंड मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड टेल एज कम्पेयर टू अदर मेम्ब्रेन लिपिड्स। और लिपिड राफ्ट में जो स्फिंगोलिपिड्स प्रेजेंट थे उसमें क्या था, उनकी जो हमारी फैटी एसिड चेन होती है ना वो ज़्यादा सैचुरेटेड थी, मतलब उसमें बहुत ही कम डबल बॉन्ड थे। और क्या था, उसमें लंबी भी थी वो, और एज कम्पेयर टू मेम्ब्रेन लिपिड्स, मतलब लिपिड राफ्ट का जो पोर्शन है उस जगह पे ज़्यादा फैटी एसिड चेन लंबी थी एज कम्पेयर टू नॉर्मल मेम्ब्रेन। These saturation properties and the rigidity and hydrophobicity of cholesterol allow tight packing of cholesterol and hydrocarbon tail of glycosphingolipids and phospholipids. और ये saturation property, डबल बॉन्ड कम है तो क्या होगा, किंक नहीं प्रेजेंट होगा फैटी एसिड टेल में और वो एक दूसरे के पास होगी और वो रिजिड हो जाएगी थोड़ा। These properties make the lipid raft thicker and less fluid, और इनकी वजह से लिपिड राफ्ट जो थे वो थोड़ा थिक थे, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्मल मेम्ब्रेन है, इधर अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा हो ये नॉर्मल मेम्ब्रेन है, लेकिन देखो ये लिपिड राफ्ट का एरिया जो है ये थिक दिख रहा है, ठीक है। तो ये लिपिड राफ्ट जो है ये थिकर थी और लेस फ्लूइड थी। हमें पता है कि नॉन आयनिक डिटर्जेंट से लिपिड मॉलिक्यूल जो है या फिर हमारी जो मेम्ब्रेन है वो इजीली सॉल्युबलाइज हो जाती है, बट हमने लिपिड राफ्ट के केस में अगर हम देखा जाए, स्टडी की गई, उसमें हमें क्या मिला कि जो लिपिड राफ्ट होती है वो लेस सॉल्युबल होती है नॉन आयनिक डिटर्जेंट की हेल्प से। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डील विद द other component of plasma membrane, that are the proteins, and some techniques related to cell membrane are also there that I will also try to cover. So thank you guys, please do like, share and subscribe to my channel if you like the lectures, and please let us know what we can change in these lectures so we can make it more attractive to you, we can make it more helpful to you. So, and please share it with your friends so that they can be helped. Thank you so much.